Okay, so very good morning. Till the previous class, we have learned some questions related to the measurement of length, right? Measurement of length से related questions हमने even previous class में we have done some word problems also. So quickly, first let me know if anyone having any question, any doubts from exercise number 6, which we have learned previously related to the measurement of length. That is miscellaneous exercise question number 6. Question number 6, miscellaneous exercise number 6, page number 160. So अगर किसी को एक्सरसाइज नंबर 6 से कुछ डाउट्स है विच वी हैव इन पेज नंबर 160, सो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है क्विकली आस्क फर्स्ट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास क्विकली. ओके, नो. एनीवन एल्स? कोई और? नो. वेरी नाइस. Okay, so moving further to the next exercise, that is exercise number 7. Quickly take out everyone page number 160, exercise number 7. This chapter is based on measurement of weight. Okay, as like measurement of length हमने किया, तो ये चैप्टर जो है बेस्ड है measurement of weight से. So write down the topic. Measurement of weights. Okay, weights और weight भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा वेट होगा तो weights लिखते हैं. So measurement of weight. So how we used to measure the weight? This is the first question which can be asked. कि what is the or what are the units to measure the weight? What is the standard unit? What is the smallest unit, or what are the units to measure the weight? So can anyone quickly tell me what is the standard unit to measure the weight? ये weight को measure करने का standard unit क्या है? This question even asked during the test also. One questions asked as like related to measurement of weight, measurement of length और measurement of capacity. ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे जल्दी से बताइए व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द वेट. वेट इज नॉट किलोमीटर. किलोमीटर इज फॉर द लेंथ विच वी यूज, मीटर और किलोमीटर. ओके, हाँ, किलोग्राम एंड ग्राम. यस, किलोग्राम और ग्राम. यहाँ पे दो चीज आता है और अपर क्लासेस में आप लोग जाओगे देन यू विल गेट टू नो different kinds of unit of measurement, as like CGS system होता है, after then MKS system होता है. So अगर इस तरह से deeply जाएं then it is categorized into several types. तो अगर if you talk about your class standards level then you can say as like if you are talking about weight then kilogram or gram. Otherwise if you are talking about CGS unit, तो CGS unit में जो है ग्राम होता है, अदरवाइज किलोग्राम हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो ग्राम और किलोग्राम कुछ भी ऑप्शंस रहेगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड आफ्टर देन इफ यू आर मूविंग टू द कन्वर्जन, सो ऑल द क्वेश्चंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज आर मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेयरइन some of the questions it can be asked for converting kilogram and gram to into gram. Some of the questions it can be given in gram, you have to convert into kilogram and gram. Some of the questions are related to the word problems also. So quickly let us discuss some of the questions related to the chapter. First question which it is asking is the fill in the blanks type of question. Okay, so पहला question जो है fill in the blanks करना है. The question is 7550, 7550 gram. This it is asking to convert into kilogram and gram. So this much is equal to how much of kilogram and how much of gram? This is the question. So quickly tell me everyone how much kilogram and how much gram will be there. 7550 gram is equal to how much kilogram and how much gram? 7550 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम और कितना ग्राम होगा? I can see Akshat and Akriti has answered. Anyone else? हाँ, Anugya also.
some more students has answered also. Okay, Anushka, Pranab, Alka, okay, very nice. So यहाँ पे because we know 1000 gram is equal to 1 kilogram, so here we have 7000 gram, right? So it will become 7 kilogram. So 7000 gram means 7 kilogram, and the remaining numbers with whatever we have in gram, that much of gram. So 550 gram. So this will become 550 gram. So 7 kilogram and 550 gram. Whoever answer is that is absolutely correct answer. जिसका भी आंसर ये है सही है. ठीक है, सभी ध्यान देंगे. Concentrate on your class. इधर उधर नहीं देखेंगे कोई. ठीक है. So next question from this part only. This is the A. If you are talking about the next one, that is also the same. So moving to the third or fourth. Third में हम लोग C में move करते हैं. Question number C is asking 12 kilogram. This is given in kilogram and gram. So 12 kilogram and 250 gram. So 250 gram. This you have to convert into gram. So quickly tell me how much of gram it will be. सबको ही बताइए कितना ग्राम होगा. 12 किलोग्राम 250 ग्राम बराबर 12 किलोग्राम एंड 250 ग्राम is equal to how much of gram. इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है. Lots of questions which we have discussed during the discussion of this chapter. Okay, exactly. Whoever giving answer is absolutely correct answer. 1200. Sorry, 12,250 gram. 12 kilogram it will be 12,000 gram, and 250. 12 kilogram will be 12,000 gram, and 250 gram will be 250 gram. So 12,250 gram. So 12250 gram will be absolutely correct answer. Very nice. This is का भी आंसर आया है, सबका सही आया है, बहुत बढ़िया. Very good. So this is how you can do the D's one also. जो D का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम अपने से लेते हैं. Suppose E में the question is 70 kilogram and 70 gram. Quickly tell me how much of gram it will be. 70 kilogram and 70 gram. 70 is not the correct answer. Quickly just think and write. That is why I have given the question. हम इसीलिए दिए हैं ताकि अच्छे से. No, 7,700 is also not correct answer. 7,700 is also not correct answer. 70 kilogram and 70 gram. 7070 is wrong answer, not correct. So 70 kilogram will be how much of gram? First that check. 7007 is also not correct answer, Anubhav. This is also not correct answer. Quickly let me see who can answer first correctly. Let us see कौन सबसे पहले सही जवाब दे पाते हैं. 1K, no one. Ayush Anand, your one is also not correct. 70,000 and then where gone the 70 gram? 70 kilogram is 70,000 gram. That is correct. And after then what about 70 gram? Now I can see Anugya has given answer correctly, which is 70 kilogram means 70,000 gram and 70 gram. So 70070. 70070 gram will be the correct answer. अनुप्रिया also has answered, और भी कुछ स्टूडेंट्स अभी सही आंसर दे रहे हैं. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है रहता है जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और आपकी बुक में भी नहीं रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, wherein it is asking about the question related to the addition of measurement of weight. Let us see. So addition is also very easy. Just you need to write properly, arranged by proper arrangement. So here as like I am taking the addition of F. Question number F का मैं लेता हूँ. Herein it is asking 13 kilogram 180 gram plus 14 kilogram and 230 gram. Quickly add everyone and tell me the correct answer what it is coming. जल्दी से ऐड करके बताइए सभी क्या आंसर आ रहा है. 13 किलोग्राम 180 ग्राम प्लस 14 किलोग्राम 230 ग्राम.
So 13 kilogram 180 gram plus 14 kilogram 230 gram. So quickly tell what will be the sum. जल्दी से ऐड कर लीजिए, यहीं पे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो आप लोग. सो 0 plus 0 is 0, 3 plus 8 is 11, so 1, 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4, so 410 gram, and kilogram check it out, 4 plus 3 is 7, okay, so 7 and 1 plus 1 is 2, so 27 kilogram 410 gram, 27 किलोग्राम 410 ग्राम. ठीक है, हाँ, इसको या तो 27,410 ग्राम भी लिख सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली है तो आपको आंसर सेपरेटली ही लिखना पड़ेगा. दैट इज द बेटर ऑप्शन. यस, जिसका भी आंसर 27 किलोग्राम एंड 410 ग्राम है इज द करेक्ट आंसर. So this type of addition types of question also very easily you can solve. Now let us see one question which is question number G. That type of questions that is related to the division of the measurement of weight, or you can say the multiplication. Okay, so here the question number G is asking 1/4 of 1 kilogram. So 1/4 of 1 kilogram. तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि 1 किलोग्राम मीन्स व्हाट एंड ऑफ मीन्स व्हाट. ऑफ मीन्स जस्ट सिंपली मल्टीप्लीकेशन ओनली, एंड 1 किलोग्राम मीन्स वी नो 1000 ग्राम, राइट. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है. तो यहां पे इसका मतलब जो हम लोग का सॉल्यूशंस बनेगा दैट बिकम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 4. ये डिवीजन साइन भी होता है, इसको डिवाइड बाय भी बोलते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड बाय 4 सिंपली. ठीक है, तो ये हम लोग का सॉल्यूशंस बन जाएगा. अब इसको अगर थाउजेंड्स को जो है 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 2 are 8, 20, ओके, देन 4 5 are 20, 0, 250 ग्राम. 4 से डिवाइड करोगे तो 250 ग्राम आएगा. ठीक है, इसको नॉर्मली इस तरह से भी किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं है तो मैंने बताया नहीं. 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम. अब इसको यहां से यहां तक कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये 250 ही आएगा. सो दिस इज हाउ 1 into 250 विल बी 250 ग्राम. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट दिस प्रोसेस यू ऑल आर अनअवेयर अबाउट, सो दैट इज व्हाई दिस इज द सिंपल प्रोसेस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन. 1 किलोग्राम, यहां पे जो भी रहेगा दैट विद दैट मच यू हैव टू डिवाइड. यहां पे जितना किलोग्राम रहेगा, यहां पे 2 किलोग्राम के केस में आप लोग बना के बताइए कितना होगा. मान लीजिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 ऑफ 2 किलोग्राम. 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 2 किलोग्राम. ये क्वेश्चन का कितना आंसर होगा जल्दी से बताइए सब कोई बना के. 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो इसको सिंपली आप अपना लॉजिकली भी आंसर दे सकते हो जो क्वेश्चन समझ पाए हो, या तो सॉल्व करके भी इस तरह से दे सकते हो कि 2 किलोग्राम बराबर वट एवर द ग्राम दैट मच डिवाइडेड बाय 2. सो हाँ, एग्जैक्टली, प्रिंस अग्रवाल हैज गिवन करेक्ट आंसर, बट इफ यू वांट टू सॉल्व, हाँ, अलका रानी आल्सो, Akshat, very nice. So 1 kilogram, simply half of 2 kilogram is 1 kilogram only. So that is how directly you can say very simply 1 kilogram as like the answer. But if you want to do with the process, then the exact processes will be like this. तो इस तरह से इसको अगर solve करके आप बनाना चाहोगे, then it will be 1/2 of मतलब multiplication 2 kilogram means 2000 ग्राम. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम लोग का 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका हो गया 1000 ग्राम, जिसका मतलब होता है 1 किलोग्राम. तो 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर लाइक दिस. तो इस तरह से आप लोग जो है स्टेप वाइज जो है कैलकुलेशंस करके भी देख सकते हो. ठीक है.
सो दिस इज अप टू क्वेश्चन नंबर जी। एच में है 1/5 ऑफ 2 किलोग्राम, ये बना के बताइए 1/5 ऑफ 2 किलोग्राम। क्विकली डू दिस एंड टेल मी द आंसर। 1/5 ऑफ 2 किलोग्राम, तो ये 1/2 हमने किया था, तो 1/5 वाला बना के बताइए आप लोग। 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो जल्दी से 2000 डिवाइडेड बाई 5 करके चेक कीजिए कितना आ रहा है बताइए। 400। Some of the students are answering as like 400. Let us see. के अनुज्ञा, अनुप्रिया, स्वाति, अलका और भी जो भी आंसर दिए हुए हैं। Let us see. So 1/5 of 200 means 1/5 of 2 किलोग्राम means 2000 ग्राम, राइट? So इसको आप अगर डिवाइड करोगे 5 से, और यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2000 ग्राम डिवाइडेड बाई 5। सो 2000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 आर 20, सो 400 ग्राम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 400 में, ठीक है। दिस इज हाउ ये हो जाएगा हम लोग का 400 ग्राम। सो 400 ग्राम जिसका भी आंसर है इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, यहाँ पे एक है जिसमें 350 प्लस 780 करना है, तो 350 प्लस 780 करके देखो कितना ग्राम होगा या कितना किलोग्राम होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस भी आता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आई का, अगर बात करें दैट इज 350 ग्राम प्लस 780 ग्राम इज इक्वल टू, इट इज आस्किंग हाउ मच ऑफ किलोग्राम and how much of gram. You have to tell in kilogram and gram. So whenever you will add this to it will come in gram only, but you have to convert that into kilogram and gram. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, let us see, very nice. So इसको अगर ऐड करेंगे 0 plus 0 is 0, 8 plus 5 is 13, 3 1 carry, 7 plus 3 is 10 plus 1 is 11. तो दिस मच ऑफ ग्राम, इसका मतलब हो जाएगा 1 किलोग्राम 130 ग्राम। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम हो जाएगा एंड 130 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वट एवर इज इन थाउजेंड्स प्लेस और आफ्टर थाउजेंड्स प्लेस दैट मच ऑफ किलोग्राम एंड रिमेनिंग डिजिट विल बी इन ग्राम। हाँ, जिसका भी आंसर 1 किलोग्राम एंड 130 ग्राम है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। सो दीज आर द क्वेश्चंस अप टू the fill in the blanks first question. Now moving to the word problems which we have 2 and 3. So these two questions are very very important and try to understand first before solving. सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए what the question is asking and you can solve after then by yourself also. So question number 2 is like weight of your school bag. आपका जो school bag है उसका एक weight है, एक particular weight है. So suppose that is 4 किलोग्राम and 360 ग्राम. Okay, so यहाँ पे हम लोग लिखेंगे weight of my school bag is equal to 4 किलोग्राम 366 ग्राम। ये सेमी लाइन में लिखने का कोशिश करेंगे आप लोग, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। आफ्टर देन इफ द वेट ऑफ योर फ्रेंड्स स्कूल बैग इज दिस मच मोर, अब दिया हुआ है कि आपका फ्रेंड्स जो है वो ज्यादा लंच लेके आ गया होगा, इसलिए उसका जो बैग का वेट है वो कुछ ज्यादा हो गया है, दैट इज 956 ग्राम ज्यादा है, ठीक है। सो नाउ इट इज गिवन वेट ऑफ माय फ्रेंड्स स्कूल बैग। आपका फ्रेंड का स्कूल बैग का वेट कितना है? 956 ग्राम मोर देन हाफ ऑफ योर स्कूल बैग। इसका मतलब क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए, यहां पे खत्म नहीं होता है। यहां पे अगर खत्म कर देते हो तो क्वेश्चन अलग हो जाता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है this much of weight of my friend's school bag is this much more than half of your school bag। तो इसका मतलब आपका स्कूल बैग से कम ही वेट होगा उसका। क्यों? क्योंकि आपका स्कूल बैग का हाफ से इतना ज्यादा है, ठीक है, आधा से इतना ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकता है वैसे,
बट हाफ से इतना ज्यादा है तो देखना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। सो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू चेक इट आउट, हाफ ऑफ दिस मींस हाउ मच, इसका आधा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आधा है, सिंपल नंबर है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर सिंपल नहीं रहता है तो डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। So in this case we can very simply find out the half of your school bag. So first let us find out the half of my school bag. So the weight, half of the weight of my school bag, यहाँ पे लिखेंगे half of the weight of my school bag, half of the weight of my स्कूल बैग, मेरा जो स्कूल बैग है उसका आधा वेट कितना होगा पहले ये लिखना है। तो इसको हाफ से हाफ कर देना है, 4 का 2 किलोग्राम हो जाएगा और 366 का 300 का 150 हो जाएगा, 150 60 का 30 हो जाएगा, तो 5 6 7 8 183 होगा। चेक कर लीजिए एक बार, 366 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 are 2, 1 16, 8 2 are 16, so 6 3 2 are 6, ठीक है। 183 आया, so 183 2 किलोग्राम and 183 ग्राम, so this much is the half of my school bag, half of the weight of my school bag। मेरा स्कूल बैग का वेट का आधा वेट ये हो गया। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका फ्रेंड का जो स्कूल बैग है वो 956 ग्राम ज्यादा है, हाफ ऑफ योर स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग का 956 ज्यादा है, तो अभी 956 इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो क्विकली ऐड 956 ग्राम इन दिस, सो लेट अस ऐड, सो द हाफ ऑफ माय स्कूल बैग इज 2 किलोग्राम एंड 183 ग्राम and we have to add 956 gram and in kilogram we don't have, so let us add 6 plus 3 9, 5 plus 8 13, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 1 11, 1 carry 3, so that means 3 kilogram 139 gram, so this will be the required weight of your friend, this will be the weight of your friend's bag, आपका फ्रेंड्स का बैग का जो वेट होगा वो इतना हो जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिंपली आप समझिए। फर्स्ट द वेट ऑफ योर स्कूल बैग इज गिवन, आपका स्कूल बैग का वेट दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका फ्रेंड का जो स्कूल बैग है वो आपका स्कूल बैग का आधा से इतना ज्यादा है, ठीक है। आधा से 956 मीटर ज्यादा, 956 ग्राम ज्यादा है। So half of the weight of your school bag first you have to find out. So half of the weight of your school bag is 4 kilogram and 366 gram. Sorry, this is the full weight of your bag. So half of the weight of your school bag is 2 kilogram 183 gram. Then with 2 kilogram 183 gram we have to add 956 gram because 956 gram more than the half of your school bag. So this is the question which it is asking and this is the how you can find out the answer. So finally you will write that the weight of my friend's school bag is 3 kilogram 139 gram. तो इस तरह से सिंपली आप लोग लिखेंगे फाइनली आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट होता है, नॉर्मली समझना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन एंड स्टेप्स अगर आप नहीं याद रखते हो, समझते नहीं हो कि हाउ द आंसर केम, देन यू विल not be able to solve during the exam or during the test, okay। So quickly tell me everyone understood or not this question, anyone is there who not understood this question, want that need to be explained again, कोई ऐसा है जिसको लगता है फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने समझ गए। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरा जो बैग है उसका वेट अगर मान लीजिए 6 किलोग्राम है, मेरा बैग का वेट मान लीजिए 6 किलोग्राम है और मैं ये बोलता हूं कि केडी सर का जो बैग है उसका वेट जो है मेरा बैग का आधा से 1 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा बैग का आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम, हाफ ऑफ द वेट ऑफ माई बैग, और केडी सर का 1 किलोग्राम ज्यादा है मेरा से हाफ से, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 + 1 सो 4 किलोग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है और भी आप एग्जांपल जो है कंपैरिजन के लिए ले सकते हो। जो मेरा स्कूल बैग है उसका आधा और उसके इतना ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, ठीक है। तो these are the some examples and this is how you can solve the
question. Now the third question, try to understand. Third question is slightly also difficult. So इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं जल्दी से. The first bag contains 8 kilogram and this much of rice. तो एक बैग है जिसमें जो राइस है, राइस का क्वांटिटी दिया हुआ है 8 किलोग्राम एंड 486 ग्राम. उसके बाद द सेकेंड बैग कंटेन्स 854 ग्राम मोर देन द राइस देन द फर्स्ट बैग. तो सेकेंड बैग जो है उसमें 854 ग्राम ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट बैग. दिस इज द फर्स्ट बैग. ओके, दिस इज द rice contained in the first bag, and in second bag this much more. So let us add and check it out how much. 6 plus 4 is 10, 0 1 carry, 9 plus 5 is 14, 1 carry, 9 plus 4 is 13, 3 1 carry 9. So 9 kilogram and 340 gram will be the, sorry यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा गलत लिखे हैं. 8 किलोग्राम, द सेकेंड बैग कंटेन्स दिस मच. अच्छा ठीक है, सही है. तो इस तरह से सेकेंड बैग का जो वेट हो जाएगा दैट विल बिकम 9 किलोग्राम 340 ग्राम. सो दिस विल बिकम द वेट ऑफ सेकेंड बैग. ओके, नाउ द थर्ड बैग कंटेन्स दिस मच ऑफ मोर राइस देन द हाफ ऑफ द सेकेंड बैग. अब थर्ड बैग में जो है सेकेंड बैग के आधा से जो है 2 किलोग्राम 366 ग्राम ज्यादा है. ठीक है, सो द थर्ड बैग कंटेन्स 2 किलोग्राम 366 ग्राम मोर देन द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सेकेंड बैग. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द सेकेंड बैग, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सेकेंड बैग. सो हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सेकेंड बैग विल बी हाउ मच? हाफ ऑफ 9 is 4.5 means 4 kilogram 500 gram. 4 kilogram 500 gram. And half of 350 is, half of 300 is 150. Okay, so easy रहेगा, आप इसको डिवाइड कर दो 2 से. ठीक है, अदरवाइज माइंड में करने जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. सो 9340 को आप सिंपली 2 से डिवाइड कर दो. सो इट विल बिकम 4 2 are 9, sorry 4 2 are 8, 1 3, 6 2 are 12, 1 4, 7 2 are 14. राइट, सो यहां पे 4670, 4 किलोग्राम 670 ग्राम. दिस इज द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सेकेंड बैग. नाउ इन द थर्ड बैग इट इज 2 किलोग्राम 366 ग्राम मोर. सो 2 किलोग्राम एंड 366 ग्राम you have to add again. So just add this and check it out how much is the answer coming. That much will be the total weight of the third bag. तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट बैग का वेट ये दिया हुआ था, सेकंड बैग का 854 मोर. सो दिस इज द वेट ऑफ सेकंड बैग. नाउ थर्ड बैग का वेट जो है हाफ 2 किलोग्राम 366 ग्राम मोर देन हाफ ऑफ द सेकंड बैग. सो हाफ ऑफ द सेकंड बैग इज दिस मच. सो यू हैव टू ऐड नाउ. ओके, so after adding whatever the answer will come, that much will be the answer. So 6 to 12 13 3 1 carry, 6 7 8 9 10 0 1 carry. Okay, 4 5 6 7. So 7 kilogram and 36 gram. So 7 kilogram and 36 gram. So this will be the required answer. Okay, thank you everyone. In homework do your exercise number 7. Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.